Hello everyone, welcome back to the Political Science lecture series on Napier, and we're going to continue with the philosophy of Karl Marx. In the last lecture we discussed the theory of alienation, and today we're going to discuss his concept of historical materialism. Now, Karl Marx was inspired by philosophy of Hegel, और उसने हेगल की philosophy को use करके change किया. But just to avoid complexity in the philosophy or too much philosophization ना हो जाए, हम इसको थोड़ा सा break down करके चलेंगे. So I'm going to focus on Karl Marx rather than providing a lot of context in terms of how Hegelian dialect was converted into Marxist historical materialism. यहाँ पर जब आप historical materialism पे question attempt कर रहे हैं तो theory of alienation की जगह पर historical materialism लिख सकते हैं. You can improvise the charts accordingly. So these are some of the questions that can come Karl Marx के ऊपर. So वो generally भी पूछ सकता है political philosophy में. वो कभी कभी कोई quotation देकर इस पे बात कर सकता है. तो ये सारे questions में more or less same ही बात हो रही है जो कि हम अभी discuss भी करेंगे. So basically according to Karl Marx, history एक खास process के through गुजरती है और एक खास तरीके से अपने आप को manifest करती है. It is important to mention here that Marx is a teleological philosopher. He believes in teleology. Teleology की सबसे आसान मिसाल ये होगी कि the fate of a seed is to become a plant. अगर आपने कहीं पर कोई बीज बोया है तो it will automatically, eventually will turn into a plant. और इसी के context में Marx ये समझता है, he's part of those broader philosophers who thinks that history progresses in a particular fashion और history को हम comprehend कर सकते हैं, उसको हम interpret कर सकते हैं और उसके basis पे future predict कर सकते हैं. तो Marx भी इसी तरीके से teleological philosopher है. So that's the first important thing. The second important thing is that he considers and his analysis is reductionist in the sense that he thinks everything is related to economy, economic structure. So वो हर चीज़ को economic structure के साथ link करता है. और उसके नज़दीक जो हर हिस्ट्री में डिफरेंट एराज गुजरे जिसके अंदर उसने हिस्ट्री को डिवाइड किया, हर दौर में एक क्लास स्ट्रगल रही है बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट, दोज हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दोज हु डू नॉट ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. द नेचर ऑफ दोज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज एंड द ओनरशिप ऑफ दोज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज, बट दिस इज द फंडामेंटल प्रेमिस कि जिस पे वो अपनी थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स सबसे पहली जो आपको अर्लियर ह्यूमन फॉर्म्स मिलती हैं, दीज आर द ट्राइबल फॉर्म्स. एंड इन ट्राइबल फॉर्म्स देयर आर नो सोशल क्लासेस बिकॉज जनरली आपकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि तब हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ होंगी. हंट करते थे लोग एनिमल्स को या प्लांट्स को गैदर करते थे, एंड दे वर नोमैडिक ट्राइब्स, दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. बट ही सेड दैट ओवर टाइम जो एक फॉर्मल क्लास स्ट्रक्चर तो नहीं बना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ज़रूर हो गया कि बाय वर्चू ऑफ देयर alleged physical superiority, men used to hunt animals and women used to either collect plants and they used to do their housework. So they were eventually domesticated. So in this fashion जो मैक्सिमम डिवीजन ऑफ लेबर हुई और जो सोशल क्लासेस बनी वो ये मर्दों की क्लास और औरतों की क्लास थी, मगर उस तरीके से फॉर्मल चूँकि फॉर्मल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एग्जिस्ट नहीं करते थे तो फॉर्मल सोशल क्लासेस वर एब्सेंट. द सेकेंड स्टेज इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन काइंड वॉज द प्रिमिटिव कम्युनिज्म. Primitive communism means communion, shared. If you have any problems remembering this concept, or I would also recommend that you go back to the lecture के जहाँ हमने basics capitalism और communism की आपस में compare की थी. तो communism, primitive communism के अंदर there were slowly and steadily several tribes united and they formed smaller cities. और इन तरह की cities में production was very low and everyone was able to provide for themselves, क्योंकि जो लोग ये community self sustaining हुआ करती थी. लेकिन ओवर टाइम इंसान ने अपने टूल्स को, अपनी क्राफ्टमैनशिप को, इन चीज़ों को इम्प्रूव किया और अपने इनको इम्प्रूव करने की वजह से द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से
from nomadic tribes they became sedentary populations. That is to say कि वो एक ही फार्मलैंड पे अपना अनाज उगा सकते थे, अपनी खुराक उगा सकते थे. एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की वजह से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जन्म लिया. प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इस तरीके से कि दिस इज़ माई फार्म, ये मेरा फार्मलैंड है जिसको मैं कल्टिवेट कर रहा हूँ. These are my domesticated animals, these are my cows which I'm using, or buffaloes which I'm using to cultivate these farmlands. तो private property developed for the first time. और जो primitive time में जो equality exist करती थी इस primitive communism में, by the end of the era of primitive communism, this gave way to social inequality. So सबसे पहले एक important चीज़ इसके अंदर ये हुई कि जब आपको farmlands की productivity important हुई, तो इसीलिए slaves का concept भी, slavery का concept भी जन्म लेने लग गया. Because now having people in bonded labor, in indentured servitude or in slavery became a profitable business. क्योंकि आपके slaves आपके लिए आपके farmlands के अंदर काम करेंगे, उसको manage करेंगे. So slaves and slave owner classes developed. Slave owners were those who owned the means of production, land or agriculture, वो basically own करते थे. And slaves were the people who did not own the means of production and they used to work on those farms. Third stage is the feudal stage, जो कि यूरोप के अंदर एक पूरा concept मौजूद था. Again, this is something that we have previously discussed in our earlier lectures as well. You can refer back to those lectures. So, our quick summary of what it was. Feudalism was based on two social classes, again in the context of Marx's social social class struggle की theory के concept में. So they were aristocratic landowners, people who owned lands and farms, and people who did not own lands and farms. These were the peasants. तो इस टाइप के सिस्टम के अंदर लॉर्ड का फार्मलैंड है और उसके ऊपर जो peasants हैं जिनको वो serfs भी कहते हैं, तो these serfs used to work, and these peasants and serfs were legally bound to these lands. So उसके ऊपर से जितनी agricultural produce निकलेगी, उसमें से जितने वो पैसे कमाएंगे, वो सारे के सारे पैसे will go to the landowners, and landowners will give only that amount of money to the serfs जिसके बलबूते पे वो जिंदा रह सके, survive कर सके. So इसके अंदर obviously the system was more progressive than slavery system, because अब आपका slave master slave relation नहीं रहा. However, still this was a very exploitative system. तो ये वो यूरोपियन feudalism का system है. यहाँ पर knights आएंगे. So kings used to grant land to nobles, nobles used to grant land to knights, knights used to grant protection to peasants. These are the warriors. Peasants would provide food and services to the knights. They would provide protection to nobles. Nobles will in turn provide money and soldiers. With industrial revolution, development of steam engine and large-scale machine production in factories, came the era of industrial capitalism. इस सिस्टम के अंदर जो proletariat class है, जो worker class है, जो हमने भी अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं, they are legally free because they are not attached to any of the factories, but in practical sense, because वो survive ही नहीं कर सकते अगर वो factories में काम नहीं करेंगे, वो अपनी family को cater नहीं कर सकते, खुद वो financially survive नहीं कर सकते. That is why they are forced to work in those factories. And since they are forced to work in those factories, it's pseudo slavery, जिस तरह हमने wage slavery का concept discover किया था. So workers don't own the means of production in industrial capitalism, and capitalist class or the bourgeoisie control the means of production in the industrial capitalist system. And this system is economically very productive because mass production of goods and services, it's very efficient in production. मगर ये एक बहुत exploitative और unequal system है in which those who own the means of production, the capitalists get excessively rich, and those who don't, they remain survival, उनका meager wages पे ही सिर्फ हो रहा है. तो अभी तक समरी हमने किस तरीके से की, वो जो class conflict है वो भी इसी के context में है कि ट्राइबल फॉर्म के अंदर जो हमने सबसे पहले डिस्कस की, क्लासेस एग्जिस्ट नहीं करती थी. सो इट वाज क्लासलेस सिस्टम, एक्सेप्ट कि मर्द और औरत के बीच में एक डिस्टिंक्शन शुरू में क्रिएट होना शुरू हुई. प्रिमिटिव कम्युनिज्म के एंड पे आपका स्लेव ओनर और फ्रीमैन और वर्सेस स्लेव्स
का जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हुआ. सो वन क्लास वाज द स्लेव ओनर्स और द फ्रीमैन एंड द अदर वर द स्लेव्स. फ्यूडलिज्म के अंदर लॉर्ड्स वर्सेस द सर्व्स और कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर बूर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट. सो सोशल क्लासेस हर दौर के अंदर वर फॉर्म्ड with their relationship with means of production. Hence, the famous quotation by Karl Marx that the history of all hitherto existing mankind is a history of class struggle. कि अब तक इंसान की जितनी हिस्ट्री है वो क्लास स्ट्रगल के ऊपर बेस है और हमेशा दो क्लासेस, क्लास exploits the other class and the class who gets exploited by those who own the means of production इसके ऊपर बेस करती है. Now, using this same थीरी जो अभी तक कंस्ट्रक्ट किया मार्क्स ने, जिसके अंदर वो सोशल क्लासेस के बेसिस पे थीरी डिस्कस करता है हिस्ट्री को, दैट इज कनेक्टेड टू हिज टीलियोलॉजी, कि इसी को यूज़ करते वो हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर रहा है. इसी बेसिस पे उसने फ्यूचर भी प्रेडिक्ट किया था. तो अभी तक हमारे पास जो समरी है, अभी तक जितनी हमने बेसिक प्रिंसिपल्स डिस्कस किए इस थीरी के, वो ये हैं कि द बेसिस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज हाउ ह्यूमन वर्क्स ऑन द नेचर टू प्रोड्यूस मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, जिसकी वजह से इवेंचुअली डिवीजन ऑफ लेबर सोशल क्लासेस में अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिलेशनशिप विद द मींस ऑफ प्रोडक्शन, हु ओन्स द प्रॉपर्टी एंड हु डजंट. ओवर टाइम सबसे पहले जैसे स्लेव ओनर्स और स्लेव्स थे, they were over time replaced by another different sets of classes by the new emerging classes such as feudals and the serfs or peasants. और उसके बाद feudals और peasants के बाद वो this was replaced by another set of social classes which was industrial capitalists, the bourgeoisie and the proletariats. So वो ये कहता है कि by the way ये superstructure की theory हम separately discuss करेंगे, so then you will understand what this means. तो इसी को यूज़ करते हुए थीरी को वो फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करता है. वो ये कहता है कि देयर इज अ क्राइसिस विद इन द सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म. व्हाई? बिकॉज जो कैपिटलिज्म का प्रेमिस है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, दिस विल लीड कैपिटलिस्ट्स कि वो कभी भी वर्कर्स को कोई कंसेशन नहीं देंगे. दे विल कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट देम और वो उनकी हड्डियों का गूता तक निकाल लेंगे और वो उनको बहुत एक्सप्लॉइट करेंगे, उनको कभी कोई फेवर्स नहीं देंगे, जिसकी वजह से there will come a tipping point because workers will be so exploited and they will be alienated. वो alienation की चारों चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी, that eventually they will be unite, they will develop a class consciousness, they will recognize that we as a class are being exploited by the capitalist and they will lead a revolution. और उस revolution के नतीजे में वो capitalist निज़ाम को overthrow कर लेंगे. और overthrow करने का मतलब है कि वो एक अपनी रियासत, वो स्टेट के हर रिसोर्स के ऊपर कब्जा कर लेंगे, जिसको वो कहता है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, व्हिच मींस दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री द मींस ऑफ प्रोडक्शन विल बी कंट्रोल्ड बाय द वर्किंग क्लास. नाउ इंडस्ट्रीज विल बी अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द वर्कर्स. और वो जो डिक्टेटरशिप जो कायम होगी प्रोलेटेरिएट की, इधर वो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट को नेगेटिव सेंस में यूज़ नहीं करा, पॉजिटिव सेंस में करा, बिकॉज द वर्किंग क्लास इज मार्क्स चोजन क्लास. तो मार्क्स ये कहता है कि वो जब वर्किंग क्लास आकर अपनी कब्जा करेगी इन सारे फैक्ट्रीज पे, तो इफेक्टिवली सारी वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करेगी रिसोर्सेज की. सो देयर विल बी अ मास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज एंड इफेक्टिवली ये होगा कि एवरीवन विल बिकम इक्वल. When everyone will become equal, तो स्टेट की ज़रूरत नहीं रहेगी. The state would quote and quote, as Marx say, wither away, and effectively at the end you will create a moneyless, classless, stateless society, which will be the pure form of communism. तो ये basically Marx की theory है of historical materialism, social class conflict की theory. अगर हम इसको समरी करें तो बेसिकली यही अब पूरे उसको समराइज इस तरीके से किया जा सकता है कि कैपिटलिज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी मेक्स समथिंग इनटू कमोडिटी, जिसकी वजह से एलियनेशन होती है. एलियनेशन इतनी ज़्यादा होगी कि इफेक्टिवली एंड पे वर्कर्स जो है बड़े वो रेवोल्यूशन लेकर आएंगे और कम्युनिज्म एस्टैब्लिश होगा. और कम्युनिज्म इज द रिडल ऑफ हिस्ट्री सॉल्व्ड, दैट इज मार्क्सिस कोटेशन, कि इफेक्टिवली फिर वो जो क्लासेस की डिस्टिंक्शन हिस्ट्री में हमेशा से एग्जिस्ट करती आई है वो ख़त्म हो जाए. मार्क्स की लेगेसी बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ वर्कर्स राइट्स. वर्कर्स ने जब आहिस्ता आहिस्ता प्रोटेस्ट करना शुरू किए और यूनियंस बनना शुरू की,
बिकॉज मार्क्स की राइटिंग्स आहिस्ता आहिस्ता बहुत फेमस हुई प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, मैस पब्लिकेशन शुरू हुई, उसकी किताब दास कैपिटल बहुत फेमस हुई। तो उसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, दे वन अ लॉट ऑफ फेवर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिस्टम। चाइल्ड लेबर आहिस्ता आहिस्ता अबॉलिश हुई, वीकेंड्स का कॉन्सेप्ट आया, मैटरनिटी लीव्स का कॉन्सेप्ट आया, लिमिटेड वर्किंग आवर्स का, सेफ वर्किंग कंडीशंस का कि वर्कर्स जिस इन्वायरमेंट में काम करें वो इन्वायरमेंट सेफ हो, मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट आया। तो ये सारी चीज़ें दीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन other aspects. It effectively even did lead to political revolutions. So for instance, लेनिन ने सोवियत यूनियन के अंदर रेवोल्यूशन इस पैटर्न पे लेके आया, माओ जेडोंग के टाइम पे चाइना के अंदर रेवोल्यूशन आई। तो ये सारी की सारी बोल्शेविक रेवोल्यूशन लेनिन की, इट एस्टैब्लिश्ड द यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स रिपब्लिक, और कोल्ड वॉर हमें नज़र आती है, फाइट बिटवीन कैपिटलिस्ट यूएस एंड सोशलिस्ट यूएसएसआर। चाइना के अलावा क्यूबा के अंदर ये रेवोल्यूशन आई, नॉर्थ कोरिया, फॉर्मर यूगोस्लाविया, दीज आर कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो दिस इज हाउ मार्क्स इम्पैक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड इन एरियाज वेयर इट डिड नॉट इन्फ्लुएंस सच रैडिकल ओवरथ्रो ऑफ द स्टेट स्ट्रक्चर। इन अदर पार्ट्स उसके आइडियाज़ ने काफ़ी टेम्परिंग इफेक्ट दिया कैपिटलिज्म को। सो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह जैसी कंट्रीज़ में आप ये देखते हैं कि कैपिटलिज्म को ह्यूमनाइज किया, क्योंकि दे रिकग्नाइज द हॉरर्स दैट एन अनब्रिडल्ड कैपिटलिज्म कुड इन्फ्लिक्ट अपॉन पीपल। हेंस दिस वाज टेम्पर्ड with these social protections and other welfare systems. So in that fashion, this is also Marx's impact. अगर हम मार्क्स की क्रिटिक करें तो बहुत ज़्यादा हमें इस पे कंटेंट अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो कार्ल पॉपर ने अपनी किताब ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़, उसके अंदर मार्क्स को प्रमोट इस बात पे क्रिटिक किया कि इट प्रमोट्स टोटलिटेरियनिज्म, दैट स्टेट दैट मार्क्स envisions और encourages कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट आए, वो सारी इंडस्ट्री को कंट्रोल करे, वो फिर मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करे और वो डिसाइड करे हु विल गेट हाउ मच शेयर। इसको कहते हैं एक टोटलिटेरियन स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपर, और वो कहता है कि इसके लिए एक बहुत ही अथॉरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक स्टेट बनेगी, एंड व्हेन सच एन ऑटोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन स्टेट वुड बी फॉर्मुलेटेड, उसके नतीजे में आवाम के राइट्स और लिबर्टीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं। और इसकी क्लासिक एग्जांपल जोसेफ स्टालिन की यूएसएसआर में जो हुकूमत थी, जिसके टाइम में रेन ऑफ टेरर कहते थे, जब हर किस्म की पॉलिटिकल ऑपोजिशन को एक्सटर्मिनेट किया गया, लोगों को साइबेरिया के पहाड़ों में भेज दिया जाता था गवर्नमेंट से इख्तलाफ करने में, जो सोशलिस्ट सिस्टम को चैलेंज करता था उसको मार दिया जाता था। उसके अलावा हर एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। तो कार्ल पॉपर despises that, which is obvious because he's a liberal democrat. Second critique is that the kind of system that it wants to create, Marx, it's undemocratic. The both political and economic systems के हर बंदे की freedoms इस तरह के system में नहीं रहती। तीसरी चीज़ ये कि by the way fix these numberings, वो ये कि मार्क्स ने इन्विजन नहीं किया था फ्यूचर में कि डायनामिक्स लेबर की चेंज हो जाएंगी। सो फॉर इंस्टेंस इन मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड और टेक एंड एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड देयर इज़ नो ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि एक बंदा ही ओनरशिप है उसकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की और दूसरे की नहीं है। सो इन डिजिटल वर्ल्ड हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती। बहुत सारे लोग अब इस दुनिया में क्लास की बेसिस पे आइडेंटिटी से एसोसिएट नहीं करते, बल्कि वो there are multiple identities that they associate with, identity of gender, ethnicity, race, cultural background. पांचवी चीज़ ये कि मार्क्स फेल्ड टू envision कि कैपिटलिज्म would adapt with changing needs. मार्क्स ने कहा था कैपिटलिज्म कभी नहीं देगा कोई भी किस्म के कंसेशंस वर्कर्स को, लेकिन कैपिटलिज्म डिड रियलाइज दिस। शायद जिस तरीके से दास कैपिटल वर्कर्स ने पढ़ी तो कैपिटलिस्ट ने भी पढ़ी होगी, और इन प्रोटेस्ट वगैरह के नतीजे में ये चीज़ें कैपिटलिस्ट्स ने वर्कर्स को दी, जो कि मार्क्स समझता था कि कभी कैपिटलिज्म नहीं देगा बिकॉज वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है और वो प्रॉफिट रिड्यूस नहीं करना चाहता। बट कैपिटलिस्ट वर स्मार्ट, दे अडेप्टेड ओवर टाइम, एंड फाइनली दैट अ ट्रू कम्युनिस्ट स्टेट वाज नेवर क्रिएटेड। जो मैक्सिमम आई वो यहाँ तक आपकी डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, एक सोशलिस्ट कंट्रीज दुनिया में आई, एक क्लासलेस कम्युनिज्म दुनिया में कभी नहीं आया। तो दिस इज़ Marx in a nutshell and his theory of historical material system.
In next lecture, we'll briefly discuss his concept of base and superstructure. See you guys next time.